हाय माय डियर किड्स एंड वेलकम बैक। सो एज यू ऑल नो कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट के दो चैप्टर्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, that is your neural control and coordination and chemical coordination and integration. ये दोनों chapters they are the most important ones from your human physiology. Human physiology first of all अपने आप में ही इतना important unit है, then उसके अंदर भी ये जो last के दो chapters है they are utmost important and those chapters we have already completed. chapters हम पूरे complete कर चुके हैं. If any of you have missed any video, किसी ने कोई class skip की है, so please do watch the recorded videos first and then come here to solve the PYQs. Otherwise बहुत सारे बच्चे cluelessly बैठे रहते हैं, they just keep saying कि अच्छा मैम ने ये question बोला then ये आंसर बोला, उससे you won't get that much benefit. So that's why please make sure that you have solved the PYQs already or you have actually studied the topic by yourself और फिर आप यहाँ पर you are coming in this session. So without any delay, let's begin today's very important session on your neural control and coordination PYQs from the year 2020 up to the year 2010 we will be solving. And as we can see, the first question is in front of us, is in front of your screen. सभी को 10 seconds मिलेंगे as you all know. And before we just begin with the answers, जल्दी से बच्चों let me see who all are present. I want everyone's response here. मुझे सभी का response चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं they all have to answer. ऐसा नहीं कि वही कुछ गिनती के बच्चे आंसर करते रहे and rest are just sitting passively. I don't want that. I want everyone to participate here. सभी का participation यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए. So the first question is in front of your screen from the year 2020 से question है हमारे सामने and you have to match the columns and then select the correct option here. And the columns are यहाँ पर organ of Corti, cochlea, eustachian tube and then stapes, and then here it is given connects middle ear and pharynx, coil part of the labyrinth, then attached to the oval window and located on the basilar membrane. These are the options in front of you and here are your matching. ये आपको यहाँ पर match करना है. So let's see what all you have to answer. देखते हैं कौन कौन बच्चों को ये सारी बातें याद है. सीधा question है, direct question है. इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी बिना ट्विस्ट एंड टर्न्स के पूछा गया है. Direct question it is. Okay, so let's see what all you have to answer quickly. You have to send your answers. सारे ही बच्चों को देखो 10 seconds are more than enough for these kind of direct questions. Direct questions के लिए इतना टाइम आपके लिए काफी होता है and I want all of you to be answering here. सभी के आंसर्स आने चाहिए यहाँ पे. Okay. All right, so as I can see that mostly जो answers आ रहे हैं they are same only, same answers ही आ रहे हैं यहाँ पर. And we all know कि जब बात होती है organ of Corti की, so where is that located? Organ of Corti, it is located on the basilar membrane. So क्या इसके सामने A लिख सकते हैं हम? अब A के सामने 4 देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन C में ही लिखा है, that means यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, but still we can match. So cochlea, we all know cochlea coiled part होता है labyrinth का. Then eustachian tube, it connects the middle ear to the pharynx and then stapes, it is attached to the oval window. So ये हो गया हमारा matching and C has to be the right answer. जितने भी बच्चों ने C आंसर किया very good, अपने आप को शाबाशी दे लेंगे. And then we will move forward towards the next question. Next question हमारे सामने है from the year 2019. अब 2019 का question है हमारे सामने and the question is which of the following statements is correct? अब आपको बताना है correct statement and the statements are given in front of you and what the statements are saying. First of all, cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye. या फिर cornea is an external transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. या फिर cornea consists of dense connective tissue and elastin and it can repair itself. Or cornea is convex transparent layer with highly vascularized which is highly vascularized. These are the statements about cornea that they have given और इसमें से आपको correct बात बतानी है. Cornea very important part of the eye.
everyone should know the correct and incorrect things about it. Incorrect जितने भी statements हैं बहुत ही abrupt है, आप देख के ही समझ जाओगे कि these statements are incorrect. So let's see who all are already answering here. कौन बच्चे already answer कर चुके हैं? And as you all know, yes, I'm doing good बेटा. यहाँ पर session start हो चुका है and I'm expecting the same for all of you. I expect कि आप सभी you all are doing well, you all are doing great. All right. Yes, Rishabh, you missed the last class. No problem, you can watch the video and then solve the PYQs. फिर आप PYQ solve कर सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं. आप देखो लेटेस्ट जितने भी आप पेपर्स देख लो, क्वेश्चंस देख लो, you will find them out to be very easy. And now here I can see. ऑल राइट, तो सभी को ये बात पता है कॉर्निया के बारे में. एवरीवन नोज दिस थिंग अबाउट कॉर्निया, दैट कॉर्निया इट कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई. दैट इज ट्रू एक्चुअली, ये बिल्कुल सही बात है कॉर्निया के बारे में. सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. ए ही हमारा राइट स्टेटमेंट होगा यहाँ पर. एंड दैट्स व्हाई जितने भी बच्चों ने ए स्टेटमेंट आंसर में दिया है, दैट इज वेरी गुड. सो मार्किंग ए एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द next question, and the question is from the year 2019. 2019 का फिर से क्वेश्चन हमारे सामने. एंड the question is, which part of brain is responsible for thermoregulation? डायरेक्ट क्वेश्चन. थर्मोरेगुलेशन कहाँ पढ़ा है हमने? मीड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर कॉर्पस कैलोसम. डायरेक्ट सीधा एकदम क्वेश्चन है ये, एकदम सीधा साधा सा क्वेश्चन है. सो आई होप यू ऑल मस्ट रिमेंबर थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन किस पार्ट से होता है? दैट इज द क्वेश्चन. एंड लेट्स सी हु ऑल रिमेंबर दिस थिंग. मोस्टली यस, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आई हैव रिसीव्ड द आंसर्स हियर. बहुत ही जल्दी आंसर्स आ रहे हैं. एंड प्लीज बच्चों, एवरीवन हैज टू सेंड देयर आंसर्स. जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, I won't name each and every one of you. Please, you have to be attentive. You have to send your response. At least you have to tell that either you are confused or you are not sure about the answer, but you have to respond so that I can get to know that yes, ये बच्चे क्लास में बैठे हैं और ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अगर आप श्योर नहीं हो आंसर के बारे में, then also send some response so that I can get to know that yes, you are here in the class. Okay, now they are asking about thermoregulation and we all know that thermoregulation किस पार्ट से होता है? हाइपोथैलेमस से. और तो कोई इसमें डाउट है ही नहीं. मीड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम, नो, not at all. Thermoregulation is the function of hypothalamus and that's a direct question. सीधा बिल्कुल question है. तो moving on towards the next question from the year 2018. And the question in front of us is, which of the following structures or regions is incorrectly paired with its function? अब यहाँ क्या दिया हुआ? You have been given the structures and here they have given you the regions. Here structures or region and then here they have given their functions. तो ये आपको यहाँ पर मैच करना है. Okay, and what they have given, first of all, medulla oblongata. इसके सामने लिखा है controls respiration and cardiovascular reflexes. Then limbic system consists of fiber tracts that interconnect different regions of brain and controls movements. या फिर hypothalamus, production of releasing hormones and regulation of temperature, hunger and thirst. या फिर corpus callosum, that is band of fibers connecting left and right cerebral hemispheres. ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है and you have to find out the incorrectly paired regions लिखे हैं, उनके functions उनके सामने ही दिए हुए हैं and you have to find out the incorrect one. जो भी correct है बहुत ही direct है. ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. ब्रेन का जो structure है that is very important. ब्रेन का हर एक part, उसका function, it should be very it should be in your grip very nicely. और क्योंकि इस पे से repeatedly questions पूछे जाते हैं. इस चैप्टर में से eye, ear, the structure of eye and ear is very important. उसके अलावा brain का function that is very very important. brain के सारे parts and their functions very important. direct इसी तरह के questions पूछ लिए जाते हैं और अगर आपको याद है तो definitely आप within seconds, 5 seconds भी नहीं लगेंगे, आप उसको mark करके आगे बढ़ जाओगे. 4 marks आपको मिल जाएंगे नीट में. so that is why
वाई ये चीजें हैं इस चैप्टर से जो कि आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है. एंड एज आई कैन सी हियर दैट मेनी किड्स हैव ऑलरेडी गिवन द राइट रिस्पॉन्स. सही रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर आ चुका है. वी ऑल नो कि मीड्यूलर ऑब्लोंगेटा का काम होता है. वी हैव स्टडीड दिस इन डिफरेंट चैप्टर्स. हमने ये रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी पढ़ा था. देन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है दैट मीड्यूला ऑब्लोंगेटा इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेज. दिस वी नो ऑलरेडी. सो ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पे. देन लिम्बिक सिस्टम, क्या इसके अंदर फाइबर्स ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं अलग अलग रीजन्स को एंड इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स. वी ऑल नो कि लिम्बिक सिस्टम जो है मेनली इट इज द इमोशन सेंटर ऑफ द ब्रेन. इट कंट्रोल्स द इमोशंस लाइक एंगर, पेन और ऑल सच इमोशंस are controlled by your limbic system. Sexual behavior, all these emotions, happiness and all that. So that's why limbic system के सामने यहाँ पर जो लिखा है it controls movement. That is not correct. So ये हमारा incorrect pair हो गया. बाकी देखो hypothalamus definitely releasing hormones release करता है ये, and hunger, thirst, temperatures, everything is controlled by it. So ये सही है. Corpus callosum भी हमें पता है it is a band of fibers जो हमारे left और right cerebral hemisphere को connect करता है. So that is also true, but incorrect statement हमारा B है. So that's why we would select B here and then we will move towards the next question. Mostly बच्चों ने B आंसर किया था, so very good बच्चों. आ जाते हैं अगले question पे. The question is from the year 2018 and what the question is saying here is Nissls bodies are mainly composed of. Nissls bodies, where are they found? I hope everyone remembers Nissls granules. Nissls body सभी को याद है, ये होती है इस तरह से. We see Nissls body in your neurons. So I hope you all remember what is that Nissls body. Nissls body क्या है? Proteins, lipids है, DNA, RNA है, nucleic acids and SER है, या फिर free ribosomes और ER है. Let's see what all you have to answer for this particular question. And the question is very easy. बहुत ही आसान question है. अगर ऐसे questions आपको आ जाते हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे नीट की, so you will just keep gaining marks. आपको ऐसे ही 4 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे easily. हलवा है आपके लिए ये सब, है ना? Yes or no? Yes. Okay. So as I can see here, Nissls bodies सभी को याद है. Nissls bodies they are basically your RER and free ribosomes. So free ribosomes and RER is the correct answer. Mostly बच्चों ने यहाँ पर D आंसर ही कहा है. जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं आ रही है प्लीज रिवाइज द चैप्टर. ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है. डिफिकल्टी लेवल इज नॉट हाई फॉर दिस क्वेश्चंस. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2018 का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज held in its place by. लेंस को उसकी जगह पर कौन होल्ड करके रखता है? लिगामेंट्स अटैच्ड टू सीलियरी बॉडी, लिगामेंट्स अटैच्ड टू द आइरिस, या फिर स्मूथ मसल्स अटैच्ड टू आइरिस और स्मूथ मसल्स अटैच्ड टू द सीलियरी बॉडी. दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू टेल कि हमारा लेंस ह्यूमन आई में किससे अटैच्ड रहता है. दैट्स द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड लेट्स सी इफ एनीवन हैज ऑलरेडी आंसर्ड. ओके, कुछ ही आंसर्स आए हैं यहाँ पर. You have to be quick बच्चों. Yes स्तुति, I can see your response definitely बेटा. मैं आपका रिस्पॉन्स देख सकती हूँ एंड आपका ही नहीं मैं सबके रिस्पॉन्स देखती हूँ, आप सभी को पता है. I always see your response. आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है एंड जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वेदर योर रिस्पॉन्स इज राइट और नॉट. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास बेटा. जब भी हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं तो यू हैव टू बी मेक श्योर दैट यू सी कि अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है कन्फ्यूजन के कारण या फिर इफ यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज मिस्टेक फ्रॉम योर साइड. सो ट्रांसपेरेंट लेंस की बात चल रही है यहाँ पर एंड it is definitely held with the help of ligaments attached to ciliary body. हमारी जो ciliary body होती है उससे जो ligaments attached होते हैं उसी से तो हमारे लेंस they are actually held at its location. So ये सारी बातें हमने एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ आई में जब हमने ह्यूमन आई पढ़ा था तब हमने बहुत डिटेल में कर रखी है. सो दैट इज वाई ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर. ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर. सो ए को मार्क करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर
2017 का क्वेश्चन है एंड व्हाट यू हैव टू टेल हियर इज गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिकेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। गुड विजन जो है वो एडिकेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड पे डिपेंड करता है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट्स में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस? द ऑप्शंस आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, या फिर द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क्स ऑफ इनर सेगमेंट, or retinal is a derivative of vitamin A, or retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments. These are the options in front of you, statements in front of you, और आपको इसमें से बताना है कि which are the best options that you would select, 1 3 4 1 3 2 3 4 या फिर 1 and 2 that you have to select from here, and 10 seconds for this question as well you will get. So you have to send your answers positively. सारे ही बच्चों के आंसर्स मुझे यहाँ पर I want in the chat section, and as I can see, all right, many kids have already given their answers. Okay, you want 5 more seconds? No problem. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 सेकेंड्स में कम में ही आंसर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, so that's not a problem. You can manage your time in that manner. All right. So as I can see, mostly जो आंसर्स आए हैं यहाँ पर, मोस्टली बच्चों ने एक ही आंसर दिया है, दैट इज बी। बहुत सारे बच्चे बी आंसर कह रहे हैं। क्या ये आंसर सही है? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। क्या ये बात सही है? विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैरोटीन से फॉर्म्ड होते हैं। यस, डेफिनेटली दैट इज ट्रू, एंड दैट इज व्हाई जब किसी को अच्छी आईसाइट चाहिए होती है, इफ समवन वांट्स गुड विजन, सो व्हाट वी से विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि कैरेट्स, राइट? सो दैट इज एक्चुअली ट्रू कि विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैरोटीन से फॉर्म होते हैं। देन फोटोपिगमेंट्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन डिस्क्स ऑफ इनर सेगमेंट। नो, दिस इज नॉट ट्रू। फोटोपिगमेंट्स हमारे इनर सेगमेंट में दे आर नॉट एम्बेडेड देयर। देन रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली जो हमारा रेटिनल है दैट इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। सो ये भी फैक्ट है यहाँ पर एक, दिस इज अ फैक्ट, सो ये भी करेक्ट है। देन रेटिनल इज लाइट अब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट्स। क्या सारे ही फोटोपिगमेंट्स का पार्ट हमारा रेटिनल होता है? सो दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। ये हमारा सही नहीं है स्टेटमेंट हमेशा। सो दैट्स वाई 1 and 3 आर करेक्ट, एंड दैट इज वाई बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने दिया दैट इज रियली करेक्ट। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया, वेरी गुड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2017, एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है that myelin sheath is produced by, again a direct question। अब देखो बच्चों, ऐसे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने अभी तक हमने कितने PYQs सॉल्व कर लिए हैं? वी हैव सॉल्व न्यूमरस PYQs फ्रॉम द ईयर 2001 अप टू द ईयर 2010, और आपको देखकर ये बात समझ में आई होगी दैट द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड आर एंटायरली बेस्ड अपॉन NCERT। लेकिन वहीं पर उसके बावजूद भी लैगिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चे NCERT भी पूरी नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर NCERT, दे आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन बुक टू द अदर बुक टू द नोट्स। उनको लगता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल बटोर ले, उससे कुछ ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, और अगर आपने NCERT को 10 बार पढ़ रखा है सो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बिकॉज दे आर एंटायरली बेस्ड अपॉन NCERT। अगर आपने ये NCERT 8 to 10 टाइम्स या फिर एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स रिवाइज कर रखी है, सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट योर स्कोर। आपका स्कोर डेफिनेटली इतना होने ही वाला है अगर आपने ये सारी बातें सिंसियरली कर ली है। सो दिस स्कोर इज एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू टू अचीव, बिकॉज अगर NCERT पूरी है आपकी प्रिपेयर्ड, यू हैव गॉन थ्रू द PYQs, यू हैव सॉल्व्ड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम योर
योर एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हमारी एनसीईआरटी ही प्रिपेयर नहीं होती है बच्चों की और वो दूसरे अलग अलग मटेरियल पे ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं, एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं। दे आर सेइंग दैट इस बुक में तो पूरा एनसीईआरटी ही है तो मैं एनसीईआरटी क्यों रीड करूँ, बट दैट इज द इम्पॉर्टेंस कि ऐसी लाइन बाय लाइन लाइनर्स आ जाते हैं एनसीईआरटी के, सो दैट विल बी इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट इज द की टू सक्सेस इन नीट। सो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, आई होप सभी को पता है यहाँ पर, ऐसा कोई भी बच्चा है जिसे ये नहीं पता हो कि माइलिन शीथ कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? यस, no? Okay, so everyone knows myelin sheath is actually produced by our Schwann cells and oligodendrocytes. जल्दी से मुझे डिफरेंस बता दो Schwann cells और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में, अगर दोनों ही माइलिन शीथ प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो आई वांट यू ऑल टू आंसर इन द चैट सेक्शन कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बीच में। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 2017 का क्वेश्चन है एंड द ऑप्शंस आर प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन्स ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू हैव टू टेल कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो रिसेप्टर साइट्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। दिस इज द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर दैट यू हैव टू आंसर। ओके, सो लेट्स सी हु ऑल रिमेंबर्स। फिर से एक बहुत ही सीधा साधा सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सो आई डोंट थिंक दैट यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए इसमें कि रिसेप्टर्स वेयर आर दे प्रेजेंट। Okay, and as I can see, many kids have already answers. I'm waiting for everyone's response, बच्चों. I'm waiting for everyone's response. ऐसे questions में तो एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये कोई confusion हो या फिर आंसर नहीं कर रहा हो कोई भी. So I want everyone to answer here. Okay, and as I can see, very good. So as I can see here, mostly जो आंसर यहाँ पर आया है that is C. Is C the correct answer? क्या C हमारा सही आंसर है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर्स लगे होते हैं क्या? डेफिनेटली दैट इज ट्रू. वी नो दैट जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसी पर द रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट. सो दैट्स व्हाई C हैज टू बी डेफिनेटली करेक्ट आंसर. जितने भी बच्चों ने C आंसर किया है, वेरी गुड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या करना है आपको? यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. You have to select the correct statement and the question is from the year 2016. 2016 का question आपके सामने statements लिखे हुए हैं and then you have to tell the right statement here. Okay, now let's see कि क्या statements हमारे सामने. First of all, the nociceptors respond to changes in pressure. Then Meissner's corpuscles are thermoreceptors या फिर photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in response to the light stimulus. या फिर receptors do not produce graded potentials. These are the options, these are the statements in front of you. और आपको क्या बताना है यहाँ पर? Correct statement you have to tell. And even if you are not sure about all the terminology, आप elimination method से तो इस question का answer दे ही सकते हैं. And let me see that what all you have to answer for this particular question. क्या answers यहाँ पर आ रहे हैं? Let us check here. All right. So as I can see, mostly जो answers आ रहे हैं they are common only, common answers आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. And some kids they are also sending different answers. मतलब एक आंसर मेजॉरिटी में आ रहा है, बाकी मिक्स्ड आंसर्स आई हैव रिसीव्ड सो फार. अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हो गई विच यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट, कि ये तो अचानक से ऐसा दिमाग में आ जाता है कि अरे ये तो हमने कब पढ़ा था या फिर पढ़ा भी है या नहीं, ऐसे बातें हमारे दिमाग में जब आ जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक कि ये कैसी टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे सामने, यू हैव टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन. जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यू हैव टू रिलाई अपॉन दैट. यस ऋषि? ओके, सो all right, 5 more seconds you want to take, you can, no problem.
यस, सो आई वॉज टेलिंग यू कि जब ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए, अगर आपको सोचना है किसी क्वेश्चन पे, तो डेफिनेटली देखो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट होगा आपका बायो में। वैसे तो यू हैव टू मेक श्योर कि 10 सेकेंड्स के अंदर आपके सारे आंसर्स हो जाए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन है या फिर ज़्यादा अगर लेंदी क्वेश्चन है, तो उसमें डेफिनेटली यू कैन टेक योर टाइम एंड सोच के ही आंसर देना है। ऑल राइट, सो येस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दैट जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाती है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। या तो आप अपनी एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, और या तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चारों ऑप्शन ही बिल्कुल एब्रप्ट होंगे। उसमें से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आपको उस बात पर अपनी कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आंसर्स दे पाएंगे। एंड एज आई कैन सी हियर कि क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर दे हैव एक्चुअली पैनिक्ड, या फिर गलत तरह से उसको ले लिया है। सो मिक्स्ड आंसर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई एम एक्चुअली रिसीविंग मैनी मिक्स्ड आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलिए, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो शुड वी डिस्कस दिस, या फिर कोई और बच्चा बाकी है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन के लिए। मेनी किड्स हैव नॉट आंसर्ड येट। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। ऑल राइट, चलिए कोई बात नहीं। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात चल रही है जब नॉकी रिसेप्टर्स की। सो व्हाट आर दे? नॉकी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्रेशर। क्या ये प्रेशर के चेंजेस में रिस्पॉन्ड करते हैं? नो, एक्चुअल में दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स वेरी डैमेजिंग स्टिमुलाई। जो कोई बहुत डैमेजिंग स्टिमुलाई होती है उसके अगेंस्ट ही रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दैट कुड लीड टू पेन ऑल्सो। सो ये यहाँ पर स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट माइसनर्स कॉर्पसल्स, सो दे आर थर्मोरिसेप्टर्स लिखा है यहाँ पर, एंड एज आई कैन सी बहुत से बच्चों ने यहाँ पर कहा दैट दे आर एक्चुअली नॉट थर्मोरिसेप्टर्स। वेरी गुड चिरंजीवी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दे आर एक्चुअली मैकेनोरिसेप्टर्स, जो कि टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स टच। सो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया। देन आफ्टर दैट photoreceptors in human eye are depolarized during darkness. darkness के टाइम पर वो depolarize हो जाते हैं and they become hyperpolarized in response to light stimulus. क्या ये सही बात है? क्या ये बात हमने पढ़ी है? This thing we have actually studied, right? ये statement as it is हमने पढ़ा हुआ है that जो हमारे आँख के अंदर photoreceptors होते हैं वो darkness के टाइम पर they become depolarized. I hope you all remember depolarization, repolarization का क्या मतलब है। एंड देन हाइपर पोलराइज हो जाते हैं जब लाइट स्टिमुलस आता है। सो ये तो बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन रिसेप्टर्स दे डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल्स। रिसेप्टर्स दे डू प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल। सो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट सी एज द करेक्ट आंसर। एंड एज आई कैन सी हियर बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा सोचकर आंसर दिया है इसका, सोच समझकर, एंड मेनी किड्स हैव एक्चुअली आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर ऐसी आपको टर्मिनोलॉजी दिख जाए जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है या फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड। जैसे कि ये स्टेटमेंट हमारा पढ़ा हुआ है, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। एग्जामिनर ऐसे सारे आपको ऑप्शंस देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। यहीं पर डिफरेंस आ जाता है एक टॉपर में और बाकी बच्चों में। सो नाउ coming to the next question, photosensitive compound in human eye is made up of option retinol, transducin and retinine, guanosine and retinol, या फिर option and retinal। अगेन नाउ दिस वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? यू हैव टू टेल द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, एंड लेट अस सी हु ऑल आर ऑलरेडी अप विद देयर आंसर्स। कौन बच्चों ने सीधे अभी आंसर दे दिया है? बहुत सारे बच्चों का आंसर रिसीव हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑल राइट,
वेरी गुड. सो इन दिस मैनर ओनली यू हैव टू मैनेज योर टाइम. ठीक है, बायो में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको टाइम बचाना है अपना फिजिक्स के लिए. बहुत ज़्यादा टाइम यू हैव टू कीप सेव फॉर दैट सब्जेक्ट. सो दैट इज वाई बायो में जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी यू हैव टू कंप्लीट. और इसी तरह से मैनेज होगा. कुछ क्वेश्चंस जो है 5 सेकेंड के अंदर आंसर हो जाएंगे, कुछ में हो सकता है आपको 20-30 सेकेंड्स भी लग जाए. सो वो इस तरह से मैनेज हो जाएगा आपका. सो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? एवरीवन नोज इट्स ऑप्सिन एंड रेटिनल. ये तो सीधा हमारा एनसीईआरटी की ही लाइन है. सो वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड हियर. डी हैज टू बी करेक्ट आंसर एंड एज आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड डी ओनली. जितने भी बच्चों ने डी बोला है, वेरी गुड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन and the question is in front of us from the year 2015. फिर से 2015 का क्वेश्चन है हमारे सामने. एंड द क्वेश्चन इज इन मैमेलियन आई द फोविया. बहुत इंपॉर्टेंट है फोविया, सभी को याद है, हमने वहां पर स्टार मार्क लगाकर फोविया के बारे में लिखा था. सो फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, मोर रॉड्स देन कोन्स आर प्रेजेंट, high density of cones occur but has no rods, या फिर the optic nerve leaves the eye. What is that? What is fovea? That you have to tell here. I hope आप सभी को याद है fovea के बारे में. The yellow spot. Everyone should remember about fovea. बहुत important statement है. And that is actually the site of most distinct vision. सबसे ज़्यादा distinct vision हमारा fovea की वजह से हो पाता है. High resolution vision, distinct vision, that is possible because of fovea itself. अब इतनी सारी बातें मैंने बोल दी हैं, सो अब तो आंसर आ ही गए होंगे ऑलरेडी. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस. डेफिनेटली यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. वी ऑल नो कि हमारा जो फोविया होता है, येलो स्पॉट, दैट इज दैट स्पॉट जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोन्स होते हैं. इट हैज गॉट हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू हैव दैट डिस्टिंक्ट विजन बिकॉज ऑफ दिस फोविया. सो मोर रॉड्स आर देयर आर हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स प्रेजेंट बट इट हैज गॉट नो रॉड्स. रॉड्स यहाँ पर नहीं होती है, कोन्स ही प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें दिख पाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. दैट इज व्हाट वी कॉल एज फोविया, या फिर मैं कह सकती हूँ उसको मैक्युला ल्यूटिया, और आई कैन कॉल इट एज द येलो स्पॉट. सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सभी ने यहाँ पर मोस्टली, लेट मी सी, ऑल राइट, येस, मोस्टली आंसर सी ही आया है. सो एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर. अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2015 एंड द क्वेश्चन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ. अगर स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या होगा उससे? कम्यूशरल इम्पल्सेस पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस, या फिर वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस. व्हाट वुड बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस? सो 2015 का क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड यू कैन आंसर दिस विद इन सेकेंड्स. बच्चों विद इन सेकेंड्स यू हैव टू आंसर. येस, डेफिनेटली ट्रू. अगर बात चल रही है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स के डिस्ट्रक्शन की, सो एज आई कैन सी मोस्टली आंसर जो यहाँ पर रिसीव हुआ है दैट इज अ कॉमन आंसर. ओके, कुछ एक बच्चों ने कुछ अलग आंसर किया है बट मोस्टली द आंसर दैट आई एम रिसीविंग हियर इज कॉमन एंड दैट इज डी. सो वी ऑल नो दैट डी इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. डी हमारा बिल्कुल सही बात है कि वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस जो है, जो हमारी वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस है, दे वुड बी लॉस्ट. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी करेक्ट हियर. डी हमारा सही स्टेटमेंट है. देन 2014 से क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, दैट इज injury localized to hypothalamus would most likely disrupt. जो हमारी इंजुरी होती है हाइपोथैलेमस में, उसकी वजह से क्या डिसरप्ट हो सकता है? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, या फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ रहे हैं. अभी तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस पे एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दिस. सो आई होप सभी को ये बात याद होगी. बिल्कुल सही, ऑलरेडी क्वेश्चन पूरा हुआ भी नहीं, पहले से ही आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं. सो ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड द आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू.
Yes, आहना, we will be beginning the next chapter very soon. बहुत ही जल्द हम next chapter शुरू करने वाले हैं. So you don't have to worry about that. You have to focus on PYQs right now. नेक्स्ट चैप्टर तो शुरू होना ही है डेफिनेटली. सो हाइपोथैलेमस की बात चल रही है यहाँ पर. हाइपोथैलेमस वी ऑल नो इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. तो अगर उसमें इंजुरी हुई है तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर. डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द क्वेश्चन सेज Which one of the following statements is not correct? अब आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. Not correct statement you have to tell, and the statements are in front of you. First of all, retinal is the light absorbing portion of visual photopigments. या फिर in retina the rods have photopigment rhodopsin while cones have 3 different photopigments. Retinal is a derivative of vitamin C. या फिर rhodopsin is the purplish red protein present in rods only. These are the statements, and what you have to tell here is not correct. Which of the statements is not correct here? Okay, so let's see what all you have to answer. Statements यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट ही दिए हुए हैं. As such लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रिक ट्विस्ट नहीं है. So I hope you will be able to answer this करेक्टली. एक्यूरेसी बिल्कुल 100% आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए. सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट. आप जैसे ही पढ़ोगे आपको पढ़ते से ही समझ में आएगा. एक बहुत ही अब्रप्ट सा ऑप्शन दिया हुआ है दैट यू हैव टू सेलेक्ट हियर. बहुत ही अब्रप्ट ऑप्शन है. यस, एंड एज आई कैन सी हियर मोस्टली जो आंसर्स आ रहे हैं they are definitely correct only. Vitamin C, that means C option सबने यहाँ पर बोला है. We all know retinal जो है किसका डेरिवेटिव है? विटामिन A का, not विटामिन C का. So विटामिन C यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल अब्रप्ट है. आप इसको पढ़ते ही समझ जाओगे that it is incorrect because it should be विटामिन A. यहाँ पे लिखा है विटामिन C. So ये हमारा गलत है. बाकी देख लो, रेटिनल लाइट अब्जॉर्बिंग पोर्शन है विजुअल पिगमेंट्स का. देन रेटिना के अंदर रॉड्स जो है उसके अंदर फोटोपिगमेंट्स होते हैं रोडोप्सिन. वाइल कोन्स हैव 3 डिफरेंट फोटोपिगमेंट्स, ये भी सही बात है. देन रोडोप्सिन जो है पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जो कि रॉड्स में प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली ट्रू. और रेटिनल इज लाइट अब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट. सब कुछ करेक्ट है एक्सेप्ट दिस वन दैट रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी. दैट इज फॉल्स हियर. सो दैट्स व्हाई सी हम सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है एंड दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. अब आपके सामने आई का डायग्राम दिया हुआ है. यू हैव टू सिलेक्ट the correct matching here from the diagram, and the question is from the year 2013. 2013 का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. ABCD लेबलिंग दी हुई है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज A, देन हियर दे हैव मार्क्ड B, देन यहाँ पर आपका D मार्क्ड है एंड हियर दे हैव मार्क्ड C ओवर हियर. इस तरह से लेबलिंग इज हियर. और फिर लेंस तो मार्क ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर लेंस दिया है. एंड दिस वन इज आइरिस दैट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड नाउ यू हैव टू सिलेक्ट दी करेक्ट मैचिंग. अब आपको यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सिलेक्ट करनी है कि कौन सा पार्ट करेक्टली लेबल्ड है और उसका फंक्शन क्या करेक्टली लेबल्ड है. दैट यू हैव टू टेल हियर. ओके, सो A, B, C and D is labeled and the parts you have to identify, and then you have to select the correct function as well. That's what you have to do. All right, so let's see what all you have to answer. Let us see क्या answers अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सामने. All right, so as I can see, okay, so mostly जो answers आ रहे हैं, let us see what all answers I am receiving. All right, so mostly जो answers हैं they are करेक्ट ओनली. अभी तक तो बहुत से करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट आंसर्स भी आए डेफिनेटली. सो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. डायग्राम के अंदर देखिए सी को क्या कहा है? सी को कहा है एक्वस चेम्बर है. दिस सी इज एक्वस चेम्बर एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस. विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस ये दिया हुआ है यहाँ पर. सो ये यहीं पर रॉन्ग हो गया हमारा. देन डी कोरोइड. डी को कहा है कोरोइड. यहाँ पर देखो डी यहाँ मार्क किया हुआ है, लेबल किया हुआ है और उसे कोरोइड कह रहे हैं. एंड इट इज एंटीरियर पार्ट विच फॉर्म सीलियरी बॉडी, दैट इज गिवन हियर. देन ए को कहा है रेटिना.
यहाँ पर दे हैव सेड दैट ए जो है हमारा रेटिना है एंड इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स लाइक रॉड्स एंड कोन्स, एंड देन बी को कहा है ब्लाइंड स्पॉट जिसके अंदर सिर्फ फ्यू रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, बी इज ब्लाइंड स्पॉट हियर, और बी को बोला है कि उसके अंदर फ्यू रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। सो आप इसको पढ़ के ही समझ जाएंगे कि कितने एब्रप्ट स्टेटमेंट्स है बाकी सारे। सो ब्लाइंड स्पॉट, वी ऑल नो दैट ब्लाइंड स्पॉट इज दैट स्पॉट जिसके थ्रू द ऑप्टिक नर्व पासेस और वहां पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज वाई ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। देन सी के अंदर दिया है कि जो ए है दैट इज रेटिना, रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इज दैट ट्रू? यस डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। और ए में देखो यहाँ पर एक्चुअल में रेटिना ही मार्क किया हुआ है, रेटिना ओनली दे हैव लेबल्ड ओवर हियर। सो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है दैट इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट हियर। ओके, बिल्कुल सही बात है। और डी में दिया हुआ है कोरॉइड, डी हमारा कोरॉइड है क्या? देखो डी यहाँ पर दे हैव लेबल, शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट डी इज ओवर हियर विच इज नॉट कोरॉइड। एंड देन सी को एक्वस चैम्बर। सो ये दोनों ही हमारे आइडेंटिफिकेशन गलत है। ए इज एब्सोल्युटली रेटिना और उसमें रॉड्स एंड कोन्स है, दैट्स वाई सी वी हैव टू सिलेक्ट। मोस्टली जिन बच्चों ने सी आंसर किया है, वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन कैटायन इज, most abundant intracellular cation, very interesting, very important question is asked here। intracellular cation सबसे ज्यादा abundant कौन सा है? हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, which one is the most abundant intracellular cation? Let's see what all you have to answer for this question। yes definitely that's correct। we all know कि जब intracellular cation की बात चल रही है तो intracellular most abundant कौन है? पोटेशियम। और अगर extracellular पूछा जाता तो कौन होता है आपका? सोडियम आयन। so that's why intracellular के अंदर पोटेशियम we have to select। and जितने भी बच्चों ने पोटेशियम आयन कहा है, very good। extracellular होता है आपका सोडियम आयन। so that is why B has to be the correct answer। B को हम मार्क करेंगे और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question that has been asked here, again a diagram based question is here and from the year 2013। क्या पूछा है हमसे? The diagram showing axon terminal and synapse is given। You have to identify the correctly at least two of A to D। Okay, you have to identify correctly marked at least two of A to D, and here you can see A, B, C, D कैसे labeling है। let me show you। first of all this is A given over here, then over here they have given B, then यहाँ पर C is given, and then here they have given D। so in this manner they have labeled A, B, C, D, and here you can see what they have given you in the options। A एक neurotransmitter है, B is synaptic cleft। ओके, बी इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ए को कहा है न्यूरोट्रांसमीटर। देन सी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सी है। ओके, दिस इज सी, सी इज न्यूरोट्रांसमीटर एंड डी इज कैल्शियम आयंस, डी वहां पर कैल्शियम आयंस है, या फिर ए इज रिसेप्टर एंड सी इज साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो सी हमारा दिया है ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है क्या? एंड देन बी इज साइनेप्टिक कनेक्शन एंड डी इज पोटेशियम आयंस that they have given you in the option। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है, टेबल्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको उनकी लेबलिंग्स बिल्कुल याद होनी चाहिए। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो द डायग्राम इज फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। अगर आपको याद है तो आप विद इन सेकेंड्स इसको आंसर कर दोगे। अगर आपको याद नहीं है सो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द ऑप्शंस विच आर गिवन ओवर हियर। बट वैसे तो क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऐसी कोई भी लेबलिंग यहाँ पर नहीं पूछी हुई है जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। दैट इज वेरी डायरेक्ट, आपको सीधे देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेबलिंग में क्या शो किया हुआ है। ओके, सो एज वी ऑल कैन सी हियर दैट यहाँ पर जो C है, C इज साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो हमारी वेसिकल्स हैं दे आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, सो C हैज टू बी साइनेप्टिक वेसिकल्स हियर। और यहाँ पर A जो है ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, एज यू कैन सी हियर ये हमारे
receptors हैं. Over here they have marked the receptor, so A is receptor and that's why C answer has to be correct here. C हमारा बिल्कुल सही आंसर है. जितने भी बच्चों ने C आंसर किया है, very good. The question was not difficult at all. सीधे सीधे आपसे लेबलिंग पूछ दी एक डायग्राम बनाकर, so you don't have to get confused in it. Now 2012 का क्वेश्चन है and the question is the human hind brain comprises of 3 parts, one of which is. ह्यूमन हाइंड ब्रेन जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं और उनमें से एक क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस. अब ये तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं होगा जिसे कि ये नहीं पता कि हमारे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है ऑलरेडी. Which part is given over here from your hind brain? So let's see what all you have to answer and I am expecting 5 सेकेंड के अंदर सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए यहाँ पर क्विकली. सिर्फ ABCD ही तो सेंड करना पड़ता है, सो इसमें भी इतना टाइम क्यों लग जाता है कभी कभी. As I can see, all right, very good. So we all know कि हमारे hind brain के क्या parts होते हैं. As we have studied, there is pons, medulla and cerebellum. And cerebellum यहाँ पर दिया हुआ है, which is a part of definitely our hind brain. Not spinal cord, not corpus callosum. We all know what these parts are. Hypothalamus नहीं, ये तो हमारे forebrain के and spinal cord is different part. So that's why cerebellum has to be correct here. C has to be right statement here. Then coming towards the next question in front of us from the year 2011. क्या question पूछा गया है यहाँ पर? The question is when a neuron is in resting state, that is not conducting any impulse, then the axonal membrane is. जब हमारा न्यूरॉन resting state में होता है, जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है वो, उस वक्त उसका एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसा होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर. उस टाइम पर एक्सोनल मेम्ब्रेन is comparatively more permeable to sodium, nearly impermeable to potassium ions, या फिर equally permeable to both, impermeable to both, या फिर comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Now I think ये दोनों options तो कोई भी select नहीं करेगा यहाँ पर कि इक्वली परमिएबल होता है या फिर इम्पर्मिएबल होता है, ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं. नाउ 50-50% कुछ बच्चों को दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है एंड लेट्स सी दैट क्या ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों ऑप्शंस में. ऑलराइट, सो एज आई कैन सी मोस्टली किड्स दे आर एक्चुअली आंसरिंग करेक्ट. किसी को भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर बात चल रही है रेस्टिंग फेज की, सो रेस्टिंग फेज में हम सभी को पता है रेस्टिंग फेज में क्या होता है. रेस्टिंग फेज के टाइम पर जो हमारा मेम्ब्रेन होता है दैट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस और सोडियम आयंस इस टाइम पर नियरली उसके लिए वो इम्पर्मिएबल होता है. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज. सो डी हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट हियर. सो डी जितने भी बच्चों ने कहा है दैट इज वेरी गुड. मोस्टली वैसे डी ही आंसर आया है, सो दैट इज रियली अप्रिशिएबल. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से. द क्वेश्चन इज the nerve centers which control the body temperature and the urge for eating are contained in. अब आप देखो कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है. yes or no, they have actually repeated the question on hypothalamus a lots of times. hypothalamus हमें पता है हमारा body temperature control करता है, urge to eat and drink, it is controlled by your hypothalamus only. so hypothalamus के repeated questions हो गए यहाँ पर. so I don't think कि कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर अब दे सकता है यहाँ पर. and as I can see mostly answers I have already received. hypothalamus पहले ही बहुत सारे बच्चों ने कह दिया था पढ़ते से ही. so hypothalamus we all know it's responsible for controlling body temperature. That's why A has to be the right answer here. यहाँ पर हम A mark कर देंगे. And here we have actually discussed another question from 2010 and I think here we have done with all the questions till the year 2010. right from your beginning we have completed till 2010 and here
दिस इज वॉट वी हैड टू डिस्कस अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, एंड लेट मी नो कि इसमें से आपको कोई भी अगर डाउट्स है, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन द ऐप, और यू कैन डायरेक्टली सेंड योर डाउट्स ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पर भी बीच बीच में कुछ बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, सो आई जस्ट मार्क देम एंड देन आई जस्ट आंसर देम इन योर ग्रुप। सो दैट इज़ वाई मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेशन अपना हाई रखें, क्योंकि यहाँ पर हम जो PYQ सॉल्व कर रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड अगर आपने इतना काम कर लिया है, सो डेफिनेटली यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आप अपने ड्रीम के पास पहुंचते जा रहे हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद another chapter. We will discuss another chapter's PYQs as well. Till then, you all know what you have to do. You have to keep revising, you have to keep studying, and we will meet in the next class. Till then, you have to take care of yourselves, and bye everyone.